زین جب اپوزیشن اور حکومت کا انتخاب ہو جاتا ہے اس کے بعد تو اگر اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے تو وہ اپوزیشن چیمبر میں جاتی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سنی اتحاد کے ممبران کہاں موجود ہیں؟ اسمبلی احاطے میں یا پنجاب اسمبلی کے ہال کے اندر ہی موجود ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو بیشتر اراکین پنجاب اسمبلی ہیں جو کہ جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل جی سے ہے، وہ ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہوئے راہداریوں میں آ گئے ہیں. جی اور کیونکہ ابھی تک اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو چیمبرز ہیں وہ الاٹ نہیں جی ہوئے. یہ چیمبر الاٹ اس وقت ہوں گے جب قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہو جائے گا. جی جب اپوزیشن لیڈر کو چیمبر الاٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو یہ اپوزیشن ہے وہ چیمبر میں جا سکتی ہے. فی الحال بیشتر جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں وہ یا تو راہداریوں میں موجود ہیں یا اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو دفاتر ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تاہم جو کمیٹی ہے جو کہ اسپیکر کی طرف سے زین، بنائی یہاں گئی ایک ہے. اور سوال ہے کہ جو اگر کمیٹی ان کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی اور یہ واپس پنجاب اسمبلی کے اندر نہ آئے تو کیا آج انتخاب ملتوی کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، اگر آئین کی روح سے دیکھا جائے تو آئین کی روح سے ایسی کوئی بھی شک موجود نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن ایوان میں موجود نہیں ہے تو جی یہ جو آج کا الیکشن ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اگر اپوزیشن نہیں بھی آتی تو اس وقت بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس آئین کی روح سے یہ اختیار موجود ہے کہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے جو چناؤ ہے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن جو اسمبلی کی روایات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن ہے اس کو واپس ایوان میں لایا جائے تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کے ذریعے اور جو ایک مقابلے کے ذریعے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کا چناؤ کیا جائے. اس میں ماضی کی ہمارے پاس جو جی مثال ہے وہ موجود ہے کہ ماضی میں جب مارچ 2022 میں قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو اپوزیشن تھی ان کی طرف سے ایوان کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا جی اور صرف ایک جو رکن قومی اسمبلی تھے وہ ایوان میں اپوزیشن کی طرف سے موجود رہے. جبکہ دوسری طرف اس وقت کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے وہ کنڈکٹ کروایا اور اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے. اس طرح ماضی کا جو پریسیڈنٹ ہے اس کو دیکھا جائے اور آئین کی روح سے دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی شک موجود نہیں ہے ایسی کہ کوئی اگر بھی شک موجود نہیں ہے. بہت شکریہ زین اللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی طلب کی گئی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور اب ان کو منا کر واپس اسمبلی لے آیا گیا ہے. اسپیکر کا کہنا تھا کہ آج کے اجلاس میں صرف وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہوگا. میں نے آئین کے مطابق ایوان کو چلانا ہے. اسپیکر ملک احمد خان نے سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو منانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور حکومتی اراکین اپوزیشن والوں کو منا کر واپس لے آئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کا بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے. حکومتی اراکین اپوزیشن والوں کو منا کر واپس لے آئے ہیں. ایک اچھا اور بڑا بریک تھرو ہے کہ سنی اتحاد کونسل جنہوں نے واک آؤٹ کیا تھا اب ان کا بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے اور حکومتی اراکین اپوزیشن والوں کو منا کر واپس لے آئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کا بائیکاٹ ختم. اس سے پہلے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور سنی اتحاد کونسل نے واک آؤٹ کیا. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور یہ کمیٹی اب ان کو منا کر واپس لے آ چکی ہے. حکومتی اراکین اپوزیشن کو واپس لانے میں کامیاب. سنی اتحاد کونسل کا بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے. لاہور پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 اراکین پر مشتمل ہے اور آج یہ فیصلہ ہوگا کہ کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا. حلف اٹھانے والے 329 ممبران ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے اور سنی اتحاد کونسل نے پہلے بائیکاٹ کیا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر. جب بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور پھر واک آؤٹ کیا گیا اور اس کے بعد اسپیکر کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور اب یہ کمیٹی سنی اتحاد کونسل والوں کو منا چکی ہے اور ان کو واپس لے آنے میں کامیاب ہو چکی ہے. سنی اتحاد کونسل کا بائیکاٹ ختم ہے اور اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور آج یہ فیصلہ ہوگا کہ کون پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ ہوگا. آپ کو بتائیں کہ پوائنٹ
ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर राना आफ्ताब की जानिब से एहतजाज किया गया था और उस पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया कि आज आप जो कुछ बोलेंगे कोई भी लफ्ज़ कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। आज का इजलास सिर्फ वज़ीर आला के इंतखाब के लिए है। अगर आपको कोई मसला है तो आप इस ऊपर आकर चेयर को एड्रेस करें। लेकिन उसके बाद एहतजाज किया गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मनाने का टास्क दिया गया और ये 3 रुकनी कमेटी इस टास्क में कामयाब हो चुकी है। हुकूमती अरकान ने और अपोजिशन वालों को मना लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाइकआउट ख़त्म हो चुका है। आपको बताएं कि आर्टिकल 130 के तहत आज का दिन मुकर्रर किया गया। ऐसा कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली का। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुकर्रर वक्त तक 6 कागजात नामजदगी मौसूल हुए हैं। दोनों तरफ के हकूक़ की आइनी जिम्मेदारी अदा करूँगा, ऐसा कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली का। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाइकआउट ख़त्म है और उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और उन्हें टास्क दिया गया था कि अपोजिशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाइकआउट ख़त्म करवाया जाए। और अब बड़ी खबर है, बड़ा ब्रेक थ्रू कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये एहतजाज और वॉकआउट ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने इजलास का बाइकआउट किया था और अब उनकी जानिब से ये बाइकआउट ख़त्म कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा है और इस बारे आपको अपडेट करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये बाइकआउट किया गया था और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात ना करने पर राना आफ्ताब की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आज का दिन सिर्फ वज़ीर आला के इंतखाब के लिए है। अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो आप चेयर को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन उस जानब से ये किया गया कि उन्होंने एहतजाज किया और फिर वॉकआउट किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाइकआउट ख़त्म करवाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की गई और अब उनकी जानिब से बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि बाइकआउट ख़त्म कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाइकआउट ख़त्म है। हुकूमती अरकान अपोजिशन वालों को मनाकर वापस ले आए हैं। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और राना आफ्ताब की जानिब से ये भी कहा गया कि अवाम ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात ना करने की वजह से हमने बाइकआउट किया और अब उनकी जानिब से बाइकआउट ख़त्म कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। इंतखाब का अमल जारी है। वज़ीर आला का इंतखाब अरकान को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियाँ बजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि कार्रवाई के आगाज़ के लिए 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी और इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। आज ये फैसला होगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। सुबह से ही पंजाब असम्बली के इजलास में गहमा गहमी और शोर शराबा देखा गया। सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से वॉकआउट किया गया और फिर अरकान को मनाकर वापस लाया गया। लेकिन अभी की इतलात ये है कि इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कर रहे हैं और राना आफ्ताब की जानिब से एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया कि अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप आकर चेयर को एड्रेस करें। लेकिन राना आफ्ताब की जानिब से ये कहा गया कि हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए और उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जारी है। इस इंतखाब के बारे में आपको बताएं तो कार्रवाई के आगाज़ के बाद 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाती हैं और इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती और ये इंतखाब शो ऑफ हैंड के ज़रिए होता है और इसमें कोई बैलेट पेपर नहीं है। काउंटिंग होगी, टेलर बताएगा कि कितने लोग मरियम नवाज़ के हक़ में हैं और कितने लोग जो हैं वो राना आफ्ताब के हक़ में हैं और जिस पार्टी के पास ज़्यादा रुकन असम्बली होंगे और वो पार्टी जीत जाएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको बताएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अप्रोक्सीमेटली जो नंबर हैं वो 224 हैं और इस हवाले से इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी और ये अमल अब जारी है। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जारी है। ये इजलास 11 बजे होना था लेकिन 30 मिनट की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ। इजलास जब शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात ना करने की इजाज़त मिलने पर उन्हें एहतजाज किया गया और एहतजाज करते हुए उन्होंने वॉकआउट किया। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया कि अगर आपको कोई मसला है तो आप चेयर को एड्रेस करें। लेकिन उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जबकि दूसरी जानिब गैलरीज में भी शोर शराबा था जिस पर
स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से तंबीह की गई। उन्होंने कहा कि हालात को कंट्रोल किया जाए, अगर आप शोर शराबा बंद नहीं करेंगे तो आपको भी गैलरी से निकाल दिया जाएगा। अभी के मनाजर हैं कि इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी बाइकआउट के बाद, और जो कमेटी इन्हें वापस लाने में कामयाब हुई, लेकिन अभी की इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में डेडलॉक बरकरार है और पंजाब असम्बली का ये इजलास है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत कर रहे हैं पंजाब असम्बली के इजलास की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज़ है और मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। सुबह से ही शोर शराबा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई है। राना आफ्ताब खान और मरियम नवाज़ के दरमियान ये मुकाबला है, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अभी तक डेडलॉक बरकरार है और वॉकआउट किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। स्पीकर पंजाब असम्बली की सेक्रेटरी को कार्रवाई शुरू करने की हिदायत सामने आई है और अब वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जारी है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। इजलास के बारे आपको बताएं तो कार्रवाई के आगाज़ के बाद 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाती हैं, इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद मेंबरान अपने अपने नामजद उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट करते हैं और टेलर जो है वो बताता है कि कितने लोग किस साइड से गुजरे और जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे वो इस हवाले से नामजद वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जारी है और ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जारी है। एक तरफ राना आफ्ताब है जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ हैं। अददी अक्सरियत की बात करें तो इस वक्त मरियम नवाज़ को अददी अक्सरियत हासिल है। कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला और इस हवाले से फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई, लेकिन दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। जाहिद आबिद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद बताइए, कुछ देर पहले खबर आई कि मना लिया गया है, अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक बरकरार है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज 11 बजे असम्बली का इजलास होना था जिसके लिए वक्त मुकर्रर तकरीबन 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ और जैसे हुआ तो पंजाब असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया और अपोजिशन जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं उनकी जानब से जिस पर मोहम्मद अहमद खान आज चूंकि एजेंडा सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब है, इस पर बात नहीं हो सकती, जिस पर इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज की हिदायत पर एक 5 रुकनी कमेटी बनाई इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, जो एक दफ़ा मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वापस इजलास में आ गए और मरियम नवाज को उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिस पर मरियम नवाज ने दोबारा उन्हें भेजा कि वो दोबारा उन्हें मना कर लाएं, लेकिन इसके बावजूद सूरत मामूल पर नहीं आ रही। लेकिन पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि क्योंकि ऐसा कोई कानूनी शिक मौजूद नहीं है किसी के हाल में मौजूद ना होने की वजह से। शुक्रिया जाहिद।